In today's session, we are going to start a new chapter, that is a fresh chapter, that is chapter number 7 of your English course book. Before starting the chapter, there is something about the theme. Which theme is going to be? We are going to, which theme, the chapter number 7 and 8 will be based on which theme? So let us read something about the theme, what we are going to have in the chapter number 7 and 8, and what we are going to do in the chapter. So let us read about those first. Can anyone read this one? Yes, Aman Verma. Aman Verma, please don't waste your time. Folk tales and fables. Okay, now stop. Folk tales and fables. How many are aware with these couple of words? And से तो सभी लोग aware होंगे. But how many are aware with the folk tales and fables? What are these words? How many know what are folk tales and fables? Show me your hand first. Is it new word for everyone? How many of you are listening this word first time? Okay, Shanika already. Shanika knows. Yes, Shanika, beta, tell us what are these words? Folk tales and fables are. Sir, folk tales and fables are the types of story. The folk tales are the story in which the characters are human, and the fables in which the human and animals both. That means, pardon please. Beta Shanika, you told that in folk tales the characters are human. What did you tell beta about the folk tales, Shanika? And so these are types of story, and in that the characters are human, and these story are told in public. Public में जो रहती है वो वैसी story. And what about what you told about the fables? In fables, the characters are human and animals both. Sir, my turn. Anybody else? Sir, matter. Yes, Anupriya. Sir, the meaning of folk tales in Hindi is lok kathaएं and the meaning of fables in Hindi is kalpit kahani. कौन सी कहानी? Sir, kalpit kahani. कौन सी कहानी बेटा, फिर से बोलिए. सर, ऐसी कहानी जो कल्पना से की गई. सर, कल्पना से बनाई गई कल्पित कहानी. कल्पित कहानी. Okay. Someone else also want to tell. I got voice from you all. Yes, Aman Verma. Sir, the folk tales meaning is lok kathaएं, and sir, the fables meaning is I think dant kathaएं. Fables की मीनिंग क्या है, क्या आपने बताया? सर दंत कथाएं. हाँ बेटा बताइए. सर दंत कथाएं. दंत कथाएं. सर कल्पना की गई कथाएं, सर ये भी बोल सकते हैं. Okay. Folk tales and fables are the types of the stories. Very good. Everyone is correct. But there is some confusion about the what are folk tales and which type of stories is known as the fables. Let us discuss about this one today. We read different types of stories. हम अलग अलग तरह की कहानियां पढ़ते हैं. We read different types of stories. अलग अलग तरह की कहानियां पढ़ते हैं. They are known by different names such as fables, folk tales, fairy tales, myths and legends. They are known by different names. वे सारी कहानियां अलग अलग नामों से जानी जाती हैं. Such as fables, folk tales, fairy tales, myths and legends.
These are 5 types of stories. Now, everybody are confused. Everybody is confused. None of the students are telling the clear answer for anyone. शानिदा ने जो बोला कि ह्यूमन है, ह्यूमन एंड एनिमल्स बोथ इन द फेबल्स, इट इज नॉट द करेक्ट वन. इसको पूरी तरीके से करेक्ट नहीं कह सकते. So what you all need to do, what you all need to do, this is the task for today. This is the task for today. You all need to work on this. You all need to find out. Already I have taught you all that how to find out how to clear your doubt. You all need to find out the answer of these questions. You all need to find out the difference between these 5 types of stories. And not only you need to find out, but even also you need to complete this table, the second table. The scan copy is not clear. I think it's a fable, it's a folktale, and it's fairy tale. You all have to tell that whether a fable is having any moral or not. Who are the main characters? Fables में main characters कौन होते हैं? Is there magic in the story? क्या fables में कोई magic होता है? You all need to tell yes or no here. Does it have a moral? Yes. If yes, then you should write yes. If no, then you should write no. If you think, not only the think, आपको खोजना है. You can take the help of Google or your elder one. What are the main characters of fables? Who are the main characters of fable? You all need to write in this box. And also, you have to tell that is there magic in the story, in fable? If yes, then you have to write yes, otherwise no. In the same way also, you need to write for folktales and fairy tales. Okay? चैप्टर Yes, sir. पहले ही आज का होमवर्क मिला. सचिन चौहान, आप तो कभी होमवर्क भेजते नहीं है, ध्यान से सुनते रहिएगा. बिना टास्क कंप्लीट किए आइएगा नहीं क्लास करने. In this theme, in the chapter number 7 and 8, we are going to read a folktale and fable. यानी पहला जो स्टोरी है, that is a folktale. Chapter number 7 is the folktale. The name of the chapter is the lantern and the fan is a folktale. And the chapter number 8, the acorn and the pumpkin. The acorn and the pumpkin is a fable. Fables. जब ये दोनों स्टोरीज हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी. बट फिलहाल आप लोग स्वयं एक बार वर्क करिए. ठीक है? जब आप इसको सर्च करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आपको ये मेमोराइज हो जाएगा. अगर मैं अभी तुरंत का तुरंत बता दूं, किसी ने बोला लोक कथाएं. ये लोक कथाएं क्या होता है? सिर्फ लोक कथाएं, कल्पना वाली कथाएं, ऐसे नहीं बोलना है. देयर आर सम पॉइंट्स, देयर आर सम क्राइटेरिया. इस क्राइटेरिया के तहत आपको देखना है. ये मिथ क्या होता है, लीजेंड्स क्या होता है, फेरी टेल क्या होता है, फेरी टेल्स, परियों वाली कहानी, मिथ्स. Yes. कैन एनीवन टेल द एग्जांपल ऑफ मिथ? कोई मिथ का कोई एग्जांपल दे सकता है? रामायण, महाभारत, दीज आर द मिथ. ओके. कृष्ण पुराण. फोकटेल्स, लोक कथाएं, जो लोगों द्वारा, अब मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश भी, थोड़ा हिंट आपको दे रहा हूं. जो सुनी जाने वाली हमेशा कथाएं हैं, जो लोगों द्वारा सुनाई जाती है, प्रचलन में होती है. सुनी हुई जो कथाएं होती हैं, जो सुनी हुई स्टोरीज होती है, दैट इज अ फोकटेल्स. लोगों द्वारा जो कही जाने वाली एक तरीके से. फेबल्स क्या वो कल्पना से पे ही आधारित होता है फेबल्स, या कुछ और भी है? तो यू ऑल नीड टू सर्च. कल्पना से. So this is the task for today. You all need to complete. Let us read the chapter number 7. Let us start the chapter number 7. The first, that is the get set. You all need to
वर्क ऑन दिस टेबल, यू ऑल नीड टू कंप्लीट। आप लोग कर ले जाएंगे या नहीं? तो कर ले जाएंगे। कर लेंगे। नहीं कर तो पाएंगे? कर लेंगे। I'll help you all, don't worry। लेकिन अगर आप लोग स्वयं काम करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, तो then you would be memorize this one, हमेशा के लिए आपको याद We होगा, can do. आप भूलेंगे नहीं। ओके, so now start the chapter। बेटा on the first day I would ask everyone to read the chapter first। कभी आप लोगों ने चैप्टर तो जल्दी पढ़ते नहीं होंगे। I would first of all, being a लैंग्वेज टीचर, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले मेरे लिए जरूरी है कि बच्चे हमारे इंग्लिश पढ़ना जानते हों। देयर आर मेनी चिल्ड्रन, दे आर नॉट एबल टू रीड द चैप्टर, दे आर नॉट एबल टू रीड द लाइन, पैराग्राफ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसका अर्थ निकालने की तो बातें ही अलग है। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी से सभी लोग वन बाय वन, एवरीबॉडी हैव टू रीड ए पैराग्राफ। ओके, यस, starting with the algebra। Start from here, from reading junction। Reading junction. Let us read a Japanese folktale, The Lantern and the Friend. A long time ago, in a village, in Japan. Sorry for interruption। अलसबा बेटा थोड़ा शांत हो। बाकी बच्चे, कई सारे बच्चे हैं मुझे पता है जो नहीं पढ़ पाते हैं, मैं उनके पास जरूर आऊंगा, उन्हीं के लिए मैं ये सेशन करा रहा हूँ, उन्हीं के लिए मैं ये सेशन करा रहा हूँ रीडिंग का, मैं उनके पास जरूर आऊंगा। और अगर अभी अलसबा पढ़ रही है, सही पढ़ रही है, अगर आप ध्यान से सुने रहेंगे तो आप भी सही पढ़ेंगे, और अगर आप सुनने के बावजूद भी अगर गलत पढ़ते हैं तो ये आपकी गलती है, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता हूं। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए जिससे आप लोग गलत ना पढ़ें। अलसबा बेटा कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। A long time ago, in a village in Japan, there lived a man who had two sons. The sons grew up and got married. The father was immensely pleased with his two immensely pleased, P-L-E-A-S-E-D, pleased। प्लीज मतलब एक खुश होना, प्रसन्न रहना। यस, प्लीज के बाद with his two daughters-in-law, and for many months they lived together happily. One day, the old man fell severely ill. Anything to cure the father. अलसबा स्टॉप, योर वॉइस इज वेरी लो, बहुत स्लो बोल रहे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है इस वजह से। रुचि, स्टार्ट फ्रॉम हियर। A long time ago, in a village in Japan, there lived a man who has two sons. The son grew up and got married. सॉन्स नहीं, सन्स बोलते हैं। Sons. तब क्या है ये बताइए, व्हाट डज इट मीन? सर, पुत्र। सन्मिस होता क्या है? पुत्र। हाँ, तो उसको पुत्र आपको पता है, बेटा पता है कि सन्मिस बेटा होता है, तो सॉन नहीं सन्स है। ठीक है, नेक्स्ट आगे यहाँ से। The sons grew up and got married. ग्रे लिखा है, ग्रे लिखा है, पढ़ना नहीं आता, ढंग से पढ़िए। क्लास 5 में पहुंच चुके हैं, अगर गलत जानबूझ के पढ़ेंगे, जल्दबाजी में गलत पढ़ेंगे तो अच्छा वर्ड नहीं होगा, बहुत क्लियर मैं बता रहा हूँ। जल्दबाजी नहीं, मुझे बिल्कुल आराम से पढ़िए, लेकिन सही पढ़िए। क्या लिखा ये? सर, ग्रे अप। ग्रे अप है, EW, क्या कौन सा साउंड निकलेगा? Grew up. Grew up, आगे। And got married. The father was immensely इमेंसल अभी पीटेंगे आपके घर पे आकर के आपको। इमेंसल लिखा है, L के बाद Y नहीं दिख रहा है आपको? immensely pleased with his two daughters-in-law, and for many months they are lived together happily. Okay, One stop, day the stop, old stop, man. stop now। अभी सभी लोग ध्यान से सुन ले, अभी काम करूंगा, एक बार मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे।
फिर देखता हूं आप लोग पढ़ पाते हैं या नहीं, ध्यान देते हैं कि नहीं। फिलहाल द फर्स्ट पैराग्राफ ऑलरेडी यू ऑल हैव रेड अ लॉन्ग टाइम अगो। एक चीज और आपको ध्यान देना है, जो आपका वॉइस एक्सेंट हो थोड़ा सा उसको भी कॉपी करने की कोशिश करिए। आपको पढ़ा कैसे जाता है, फुल स्टॉप और कॉमा का क्या यूज है। फुल स्टॉप कॉमा जब हो तो वहां पे रुका जाता है थोड़ा सा। आप क्या बोला जा रहा है, कैसे आपके स्टोरीज में क्या, उसमें किस तरह का वहां पे भाव आ रहा है, उसको भी आपके वर्ड्स में आने चाहिए। कोशिश ऐसा करिए, और अभी से जब प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के आप पढ़ना सीख पाएंगे, नहीं तो ऐसे पता ही नहीं चलेगा आप क्या पढ़ रहे हो, ना सुनने में अच्छा लगेगा ना पढ़ने में अच्छा लगेगा। A long time ago in a village in Japan there lived a man who had 2 sons. The sons grew up and got married. The father was immensely pleased with his 2 daughters-in-law, and for many months they all lived together happily. Next paragraph. One day the old man fell severely ill. Severely ill. The doctor was called, but he could not do anything to cure the father. Cure means होता है इलाज करना. But he could not do anything to cure the father. He said that it was an illness for which there was no cure, and that he would die soon. The sons and their wives were very sad, but nothing could be done. So they decided to take very good care of the old man and keep him as happy as possible. Now, second paragraph, Sanvika. Yes, sir. Sir, one day many months passed, and the 2 young women started looking at. Sanvika, second paragraph you need to read. Okay, sir. Sir, one day the old man fell severely ill. The doctor was, yes, sir. जल्दबाजी नहीं, मैंने बोला है रीडिंग में जल्दबाजी नहीं, मुझे प्रॉपर सही प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से रीडिंग चाहिए. Yes, sir. Sir, one day the old man fell severely ill. The doctor was called, but he couldn't do The doctor anything. was called, but ये wrong है बेटा शामिका. The doctor was called, but नहीं, the doctor was called. Called के बाद आपका full stop है. You should stop there. The doctor was called, but नहीं होगा, ये wrong है. Called और but अलग अलग है. Called के बाद आपको रुकना है, फिर उसके बाद but बोलना है. फिर से बोलिए. Yes, sir. The doctor was called, but he couldn't do anything to cure the father. He said that it was an illness for which there was no cure, and that he would die soon. The son and their wives was very sad, but nothing could be done. So they decided to take very good care of the old man and keep him as happy as possible. Very good, बहुत अच्छे. अनुप्रिया, now your turn. बेटा बाकी लोग भी मन में क्या माइक बंद है, आप लोग भी पढ़ते रहिए. कम से कम आप पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं. मैं अभी किसी का भी नाम ले सकता हूँ, सुषमा, अनिल, सौरभ, किसी का भी नाम ले सकता हूँ. इवन अभिनय पांडे भी रेडी रहे. अनुप्रिया, now your turn. You need to read from one day. Anupriya is not there, I think. Anupriya is not connected. Anupriya, you are connected, beta. I am asking you to read from here. Are you listening or not? Unmute yourself and read from here. अनुप्रिया, आपने फिर से अपना माइक बंद कर लिया. मुझे लग रहा है आपका दिमाग कहीं और है, आप कोई और दूसरा ऐप यूज कर रही हो. मुझे आपको बाहर करना पड़ेगा. आई हैव टू रिमूव यू.
I have to remove you. निहारिका, निहारिका आप इसको पढ़िए। निहारिका को पढ़ना नहीं आता और निहारिका सबसे पहले गायब हो गई। लेट मी कॉल हर फादर फर्स्ट। मैं अभी अनुप्रिया के घर पे भी बात करता हूँ। लेट मी कॉल इमीडिएटली। आप लोग के सामने ही मैं कॉल कर रहा हूँ। Let me call in the recording itself. First, let me call to the Niharika's father. जिसकी वजह से मैंने शुरू किया वही नहीं आएगा पढ़ना तो आप ही लोग का नुकसान है, जो भी नहीं पढ़ेगा। अभी निहारिका आ जाएंगी। His father would be going to her. Yes निहारिका, क्या हुआ? नेटवर्क आ गया बेटा? आप माइक ऑन करिए, माइक ऑन करके बताइए। माइक ऑन करिए तुरंत। फर्स्ट ऑफ ऑल अनम्यूट योरसेल्फ। माइक ऑन करिए निहारिका। यस आपका सर। नेटवर्क इतना गड़बड़ है कि इतना अच्छे अभी अचानक से बहुत अच्छा नेटवर्क। जब तक आप जुड़े थे वहां पे मुझे एक भी टेक्निकल इशू नहीं हुआ। प्रॉपर आवाज आ रही थी, प्रॉपर जा रही थी। आप जरा इसको पढ़िए निहारिका, आप इसको पढ़िए, मन से लेकर के पढ़ना शुरू करिए। तो कौन सा पैराग्राफ? सेकंड पैराग्राफ, और थोड़ा तेजी से पढ़िएगा। One day the old man feel तेजी से मतलब बहुत जल्दी नहीं, थोड़ा लाउड पढ़ना है। read loudly. One day the old man feel severely ill. The doctor was called, fell severely. severely ill. The doctor was called, but he could not do anything to cure the father. नहीं है, He C said, केयर होता है, CURE है। ये क्या है? ये cure yes, cure. cure the father. He said that it was an illness for which her was no cure, and that he would did soon their son What is and निहारिका? DIE. What is this? die. डाई, आपने डाई बोला है अभी कि नहीं? रीडिंग के समय नहीं बोला ना? प्लीज नहीं बोला। जल्दबाजी में गलत करेंगी तो भी मैं उसको और भी बड़ी गलती मानूंगा। रीडिंग के समय प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करें, प्रॉपर्ली रीड करें। ठीक है, पढ़िए आगे। The sons and their wives. बेटा सन्स है, सन और सन्स में डिफरेंस होते हैं। सन्स and sons and their wives ये क्या है? were very sad. इट्स नॉट वीप्स, WIVES। क्या हो गया? Wives. तो आप वीप्स क्यों पढ़ रही हो? जब आपको आता है तब क्यों वीप्स पढ़ रही हो? अब दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। ध्यान से पढ़िए, अगर आपको आता है तो सही से पढ़िए। They are very sad, but nothing could be done, so they decided to take very good care of the old man and keep him as happy as possible. AS क्या हो गया? Him as happy as possible. अगर मैं यहीं पे US लिख दूं क्या होगा? US लिख दिया। What is this? ये US क्या है और AS क्या है? US को क्या पढ़ेंगे? Sorry. US is us. Us. AS आपका as है। As आप ऐसे भागेंगे ना तो आपको पढ़ना भी नहीं आएगा बेटा। बाकी बच्चों को पढ़ना लगभग आता है, और भी बच्चे हैं 3-4 जो आपसे भी कम पढ़ना जानते हैं।
अगर वो लोग भी नहीं ध्यान देंगे तो उनको भी नहीं आएगा. बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम यू. आप किसका नुकसान कर रही थी क्लास छोड़ के? मेरा. मैं तो चैप्टर खत्म करके, मैं इसको पढ़ा करके खत्म करके, मुझे भी सिलेबस कंप्लीट करना है, खत्म कर दूंगा मैं भी. उसमें नुकसान आप ही का होगा, बाकी बच्चे तो कर लेंगे जो करना जानते हैं. जिनको नहीं आता है ये रीडिंग कराना, जो नहीं कर पा रहे उनके लिए स्पेशली ये आज मैंने सेशन कर दिया. अदरवाइज आई वाज ट्राइंग टू ट्रांसलेट ऑल दोस थिंग्स. मैं इसको एक्सप्लेन करता और इस चैप्टर को खत्म करता. ओके, नेक्स्ट. निहारिका, नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ. अनिल मौर्य, आपने तो बेटा एक बार पढ़ा ना अनिल? Yes, sir. Okay, then you have to stop. Sir, third paragraph. No, Anil Maurya, you have to wait. Savitri Pal, read the third paragraph. So many months passed, and the two young women started missing their own families. Among the Japanese, it has tradition for the son's wives to always obey the father. Okay, stop. बेटा ये क्या लिखा है? TRADITION, क्या है ये? क्या है? ट्रेडिशन. क्या है? ट्रेडिशन. ट्रेडिशन मतलब एक होता है रीति. ये हमारे यहाँ के ट्रेडिशन है, इंडिया के ट्रेडिशन है, हमारे मतलब कहते हैं ना, दिस इज द ट्रेडिशन. ये रीति चली आ रही है, रिवाज. ये सोन्स नहीं है, सन्स है. ओबे. ओके, नेक्स्ट. Sachin Chauhan, you have to read from here. So the two women went to their father-in-law and expressed to desire to go नहीं है बेटा, to their expressed their desire. Their है ये, ध्यान से. their desire to go to their own village father-in-law. ये ब्लेज नहीं है, वो ब्लेजर वाला ब्लेज नहीं है, विलेज है. बी पहले वी अब फिर लेज है, विलेज. सही से प्रोनाउंस भी करिए. Village father-in-law, they said, it has been a long time since we have been home. May we go home and visit our family and friends. ओके, स्टॉप. बेटा जैसे जो अभी स्टार्टिंग में जो शुरुआत में बिगनर्स हैं वो रीड कर ले जाएं तो दैट इज इनफ. चलो वो बहुत अच्छी बात है. बट लेकिन जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको रीडिंग आती है, वो फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन की तरह पढ़े. अगर कोई क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको उसी तरह पढ़े भी. फुल स्टॉप जहां पे रहे वहां पे रुके भी, कॉमा जहां है उसको रुके भी. तो वो लोग कोशिश ये करें, सभी के लिए सुधार की गुंजाइश है, सभी को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए. रीडिंग ऐसा नहीं है कि सभी, अभी शानुका ने भी रीडिंग तो कर ही रही थी बट वहां पे कहीं ना कहीं अभी और भी वो इम्प्रूव कर सकती है. फुल स्टॉप कॉमा पे जब वो रुकना शुरू किया और अच्छा लगा, अभी और भी इम्प्रूवमेंट ला सकती है. इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं. अभिनय कुमार पांडे, नाउ योर टर्न. बेटा मैं सोचा था सबसे बाद में आऊंगा आपके पास, बट नाउ योर टर्न. अभिनय. Yes, sir. यहां से पढ़िए. The father-in-law answered, "No, now, नाउ नहीं है, After- no." After नो many आफ्टर एक mother, साथ है. नो आफ्टर एक ही Sir? साथ है, अलग अलग है. yes sir, अलग अलग. तो अलग अलग बोलिए. No, after many months, they is asked again. The father-in-law looked Suleiman सुलेमन नहीं है, सॉल्म. solemn and gave the same answer.
ओके, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतना बेहतर पढ़ेंगी, लेकिन आप जिस तरह से ध्यान से देख देख के पढ़े हैं। अनुप्रिया बेटा आप सबसे लास्ट में, जब मैंने आपको बोला था तब आपने नहीं रीड किया था, सबसे लास्ट में अब आपके पास आऊंगा मैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, आई विल कम टू यू एट द एंड, जस्ट वेट। आपने अभिनय जैसा भी पढ़ा बहुत अच्छा लगा, आप इसी तरीके से डेली रीडिंग करिए। यस सर। सुषमा नाउ योर टर्न, यहाँ से। A whole year went the two women went and asked that again. The father-in-law so थॉट, they cared nothing for me, or they would not wish to leave me when I am so ill. This so filled him with sadness, knowing that his days were numbered. He did not want to spend them all by himself. So he made a plan to ask to the two daughters-in-law to get him things that were impossible to find. ओके बेटा स्टॉप, बहुत अच्छे। सुषमा आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा, ऑल्सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आप भी बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही बढ़िया। आकांक्षा पांडे नाउ योर टर्न। यस सर। मैं अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुने। सुषमा ने फिलहाल फुल स्टॉप कॉमा को बिल्कुल भी नहीं फॉलो किया है, वो नहीं अच्छा है। ये सारे वर्ड्स को करेक्ट पढ़ी हैं, बस इतना समझ लो रीडिंग कैसे किया जाता है। फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क्स को ध्यान में रखते हुए जो रीडिंग कर ले जाए, दैट इज द बेस्ट वन। वो अभी तक केवल सान्विका ने फॉलो किया है, बाकी लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। अभी फिलहाल सुषमा ने सारे वर्ड्स को सही से पढ़ा, दैट वाज द करेक्ट। यस आकांक्षा। Yes, sir. Son, he had to himself. आकांक्षा पहले ये बताइए क्या लिखा है ये? Sir, son. SOON, सॉन नहीं होता, सून होता है। डबल ओ अगर साथ में आए, ओ आए तो वहां पे ऊ का साउंड आता है, सून। क्या है ये? Sir, soon. सून मिस होता है जल्दी। आगे पढ़िए। Soon he said to himself, I shall know whether they love me or not. लव मी, He said to ही नहीं, आगे। elder daughters-in-law, my go if your wish. लिखा है, यू लिखा है, क्या आप जल्दी जल्दी में खत्म करना चाह रही हो? गलत गलत पढ़ के ढंग से देखिए और पढ़िए। अगर योर है तो योर पढ़िए, यू है तो यू पढ़िए। यहां से फिर से पढ़िए। He said to his elder daughter-in-law, you may go if you may, you may go if you wish, but you must not come back unless you bearing me. बी आर से क्या होगा? ING से क्या होगा? ING से क्या होगा? Sir, burning. बर्निंग। देखो ING, देखो पहले इसको देखो, बी आर से ब्रा, ING से इंग, क्या हो जाएगा? जब दोनों को आप ब्लेंड करेंगे तो क्या होगा? BRI से BNG, ब्रिंग। ये ब्रिंग है, बर्निंग नहीं है बेटा। Bring me fire. FIRE, फायर, फायर मीन्स आग।
Wrapped रैप नहीं, रैप्ड, डब्ल्यू इज साइलेंट लेटर इन हियर। रैप्ड, रैप्ड मींस होता है लपेटना। आप लोग गिफ्ट रैप करते हैं? Yes, sir. गिफ्ट रैप करते हैं? Yes, sir. वही रैप है, वही रैप्ड है, रैप्ड इन पेपर। चलिए ठीक है। आकांक्षा में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। आप रीडिंग करो, ध्यान से सुना करिए। सुनोगे तो ही बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनोगी तब। इट इज ए रैप्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट कौन बचा है? सौरभ कनौजिया। Yes, sir. Sir, to the younger, he said, "You may go if you wish, but you must not come back unless you bring me wind wrapped in paper." The two young daughter-in-law were so eager to visit their families and friends that they immediately agreed. ओके, स्टॉप। The two women यहाँ पे ईगर पे, ई पे आपको यहाँ पे एम्फसाइज करना था, ईगर। ओके, नेक्स्ट हु इज लेफ्ट? नाउ हु इज लेफ्ट? शो मी योर हैंड। अनुप्रिया, यहाँ से पढ़ो बेटा। The two women had a good time with their families. They forgot all about the gifts. Soon it was the time to go home. The two women were greatly distressed. They asked a wise man where they could find a widget, things that their father-in-law had asked for. Paper that holds fire and winds. The wise man cried, "There is no such papers in Japan." The two women asked one wise man after another, but all of them expressed their doubts about the existence of such paper. स्टॉप बेटा। Oh, डिस्टेंस। what will we do? स्टॉप अनुप्रिया। बेटा, also you have followed the comma and full stop. You have read very brilliantly. आपका और शानिका का रीडिंग सुन के मुझे अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनिल मौर्य, नाउ रीड फ्रॉम हियर। अनिल मौर्य ना। Oh, 56 yes, sir. समय नहीं Oh, oh, what will we do? They cried. They feared that they would never see their home again. They were so sad that they left their friends and wandered deep into the forest. The trees Wandered. were so close together they could barely see through them, and this less picked them with every step they took. Soon they were completely lost. They sat down under a tree and started crying. स्टॉप। All of a sudden, ध्यान से आप जीभ निकालना बंद करिए। अभिनय कुमार पांडे, पढ़ना शुरू करिए। जो कथा सुन रहे हो, देख रहे हो, देखने से नहीं पढ़ना आएगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा आएगा। अनिल मौर्य बेटा, आप में थोड़ी सी कमी है। जो आप हकलाना है, ये हकलाहट तब खत्म होगी जब आप बराबर रीडिंग करेंगे। हर दिन कम से कम 3-4 पेज पढ़ डाला करो। 10 मिनट का काम है आपके लिए। मुश्किल से 20 सेकंड में आपने इतना पूरा पढ़ डाला, और पूरे पेज को आप ज्यादा ज्यादा 2 मिनट में पढ़ डालेंगे। नाउ हु इज लेफ्ट? अतुल चौहान, पढ़ चुके हैं आपके बच्चे हैं? सर अभी नहीं। ठीक है, जल्दी से आप सर भी नहीं। पढ़िए। हु इज लेफ्ट? शो मी योर हैंड। अतुल चौहान, आप पढ़ते रहिए। अतुल बेटा, 3 बजे मेरी क्लास है, 2:58 हो चुका है। आई डू नॉट हैविंग टाइम, सो प्लीज रीड क्विकली। women were so बेटा, जो भी पढ़ना है आपको तेजी से पढ़ना है। बी लाउड। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। अगर पढ़ना नहीं आता तो मुनमुनाओ मत। गलत होगा तो मैं बताऊंगा। कोशिश करिए पढ़ने की। all of suddenly ये अल नहीं है, अल नहीं है, all अल है ये।
क्या लिखा है ये जरा? All of a suddenly a wife. सडनली लिखा है, क्या पढ़ रहे हैं? All. सडनली लिखा है, क्या पढ़ रहे हैं आप? SUDDEN क्या हो गया अतुल? Sudden. सडन, जल्दी जल्दी में सडनली बोल दो, कुछ अल बोल दो। अरे उसको धीमे धीमे तेजी से बोलिए, जैसे मैं बोल रहा हूं। बोलिए ऑल ऑफ A sudden. ऑल ऑफ ए सडन, बोलिए All of a sudden a wife. a voice boomed. Boomed, beeping in. A wife boomed, beeping. बीपिंग के बाद पढ़िए तो लीव हो गई। लेफ्ट हो गए, पढ़ना नहीं आ रहा है। सभी लोगों ने सुना? अगर ऐसे ही रहेंगे तो पढ़ना भी नहीं आएगा बेटा। ऑलरेडी 3 o'clock is there, सो अभी जो बच्चे हैं, अमन वर्मा यू मतलब आप पढ़ लेंगे, मुझे पता है। एक बार अच्छे जल्दी से पढ़िए यहाँ से। All of a sudden, a voice boomed, weeping is not allowed in my woods. My trees do not thrive in salt water. The poor women were so sorrowful that they even forgot to be afraid of the strange voice in the woods. वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। एवरीवन ट्राइड गुड। सभी लोगों में कुछ ना कुछ, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने इम्प्रूवमेंट नहीं है। सब ने बहुत इम्प्रूव किया, सबसे बहुत खुश हूं। अतुल चौहान, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। दैट्स गुड। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं इसका एक्सप्लेनेशन आज रिकॉर्डिंग करके रात को मैं भेज दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन में आपके सारे वर्ड्स की मीनिंग्स भी उसमें डिस्कस की गई होंगी। इस पूरे स्टोरी के को नरेट भी किया गया होगा आपकी अपनी लैंग्वेज हिंदी में, ओके। और Yes. उसमें बुक्स को रीड भी किया गया होगा, पैराग्राफ को रीड करके हर वर्ड्स की मीनिंग बताते हुए उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाया गया होगा। सो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, ओके। सो दैट्स फॉर टुडे। गुड बाय एवरीवन। Goodbye.